Use your mobile phone as an asset. Use your mobile phone as an asset. Don't let it become the liability of your success. Don't let it become the liability of your success. A very good morning to all my dear students. I welcome you in the class of accounts, standard 11. We are going to start with the second session of the chapter provisions and reserves, chapter number 3 from your second part of accounts. Let us start with our today's new topic, that is types of reserves. Mainly there are two types of reserves, that is revenue reserve and capital reserve. Under revenue reserve, there are three more bifurcations: general reserve, specific reserve, and secret reserve. Let us first understand what is revenue reserve. Profit generated out of purchase and sales of goods and other regular activities of the business is called revenue profit. रोजमर्रा की जो रोजिंदा का आपका परचेज एंड सेल्स है गुड्स का, उसमें से कमाया जाने वाला जो आपका प्रॉफिट है, दैट इज योर रेवेन्यू प्रॉफिट. द रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ सच रेवेन्यू प्रॉफिट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिजर्व. उस रोज रोज के प्रॉफिट जो हैं आपके, कौन से वाले प्रॉफिट, जिसमें आपने परचेज एंड सेल्स किए हैं गुड्स का, रेगुलर प्रॉफिट्स आपके मिल रहे हैं आपको रेगुलर एक्टिविटीज परफॉर्म करके. सो उस रेवेन्यू प्रॉफिट में से रिजर्व क्रिएट जो किया जाता है, दैट इज योर रेवेन्यू रिजर्व. Revenue reserve is very useful to increase financial soundness of the business. Moreover, revenue reserve can also be used to pay contingent expenses, may or may not happen expenses or losses of the business. Revenue reserve can be classified into three categories, that is general reserve, specific reserve, and secret reserve. First is general reserve. The purpose of creating general reserve is to increase the financial soundness of the business. Its purpose is not specific. Why the purpose is not specific? Because the name itself suggests that it is general. जहां पे भी आपको प्रॉब्लम आएगी, जहां पे भी आपको फाइनेंशियल तकलीफें होंगी, वो सब जगह पे आपका कंपनसेट करने, जहां पे आपको यूज करना है, that is your general reserve. Therefore, it can be used to meet with contingent expenses or losses, distribution of dividend, issue of bonus shares for future growth of the business. कहीं पे भी आप ये रिजर्व का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. Thus, general reserve is a helping hand for business in contingencies. General reserve is created out of profit and loss appropriation account, for which the accounting entry is profit and loss appropriation account debit to general reserve. Because these are the reserves, they are always being credited in your balance sheet. Fine. Now moving further on specific reserve. When a revenue reserve is created out of profit and loss appropriation account for a specific purpose is known as specific reserve. जो फर्स्ट हमने स्टडी किया, दैट वाज योर जनरल रिजर्व, दैट वाज अलाउड टू यूज ड्यूरिंग योर कंटिंजेंसीज. कोई भी काम के लिए आप उन रिजर्व्स का यूज कर सकते थे, दैट वाज योर जनरल रिजर्व. नाउ अगेन एज पर द नेम, दिस इज योर स्पेसिफिक रिजर्व. जिस पर्पस से आपने उसको बनाया है, वही पर्पस के लिए आप इन रिजर्व्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हो. The purpose of such reserves may be to distribute dividend of shareholders, redeeming debentures on maturity, or to compensate loss against probable decrease in the value of investment, or to pay compensation at the time of accident to the workers. अब अगर अपन ने say for example we have created the reserve for compensation at the time of accident to worker. साल कंप्लीट हो गया, कोई भी वर्कर का ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं आया, कोई भी सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस नहीं आए. अच्छा हुआ कि वर्कर्स को जरूरत पड़े
पर अगर वो वर्कर को फैक्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, फर्म के अंदर अगर कुछ उसका एक्सीडेंट होता है या उसको कुछ लग जाता है तो वो पैसा उस पर्पस के लिए ही यूटिलाइजेशन हो सकता है। फाइन, इज दिस क्लियर? Thus, such reserve is used for the same purpose of which it is created. जिस पर्पस के लिए आपने उसको बनाया है वही पर्पस सॉल्व करने के लिए आप उसका पैसा यूटिलाइज कर सकते हो, because this is a specific reserve. The most important point about this reserve is that the balance of specific reserve after serving its purpose is transferred to general reserve. एक बार जब एक साल कंप्लीट हो जाता है और अगर उस स्पेसिफिक रिजर्व का कुछ बैलेंस बचता है तो वो बैलेंस को कहां डाल दिया जाता है? जनरल रिजर्व में। से फॉर एग्जांपल, टू पे कंपनसेशन एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट टू द वर्कर्स के लिए आपने 50,000 रुपीज रिजर्व्स में आपने मेंटेन करके रखे हैं, पूरा साल कंप्लीट हो जाता है, आपको वो पैसा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो सेम दैट 50,000 इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। एंड से फॉर एग्जांपल 50,000 में से 15,000 आपका यूटिलाइज हो गया है तो बैलेंस 35,000 विल बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। ओके, सो लेट अस गो थ्रू विद इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में से बनाया जाता है तो अगेन ये यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है, हमें जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करना होगा और हमने पहले से ही रिजर्व मेंटेन करके रखा है तो हम डिविडेंड इसमें से डिक्लेयर करेंगे। डिवेंचर रिडम्पशन फंड है, डिवेंचर्स का मैच्योरिटी टाइम आ जाता है, हमें हमारे डिवेंचर होल्डर्स को पैसा वापस देना है जब, तब हमें वो पैसा कहां से देना होगा? जो हमने डिवेंचर फंड बनाया है, डिवेंचर रिडम्पशन फंड, उसमें से हम हमारे होल्डर्स को पैसा लौटाएंगे। तो ये जो फंड हमने डिवेंचर रिडम्पशन बनाया है वो उसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं। फाइन, सो लाइक दीज वे डिफरेंट स्पेसिफिक रिजर्व्स अपन मेंटेन करते हैं, क्रिएट करते हैं और वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूटिलाइज होते हैं। सो दो हमने स्टडी किए हैं, एग्जांपल्स अभी देख रहे हैं स्पेसिफिक रिजर्व्स के कौन कौन से हैं जो ऊपर यहाँ पे क्रेडिट किए थे, उन्हीं सबको यहाँ पे उन लोगों ने इन डिटेल समझाया है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दिस रिजर्व इज टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स इन द ईयर इन विच द प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट और इवन टू मेंटेन डिविडेंड इन द ईयर ऑफ लॉस। हमने ये रिजर्व क्यों बनाकर रखा है? जब साल में प्रॉफिट होगा तब हमारे डिविडेंड डिक्लेयर करना या शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना is not a big deal because the company has earned profit. But what about in the year when company has not earned profit or were very nominal profit sufficient नहीं थे, या फिर उस ईयर में भी डिविडेंड को डिक्लेयर करना जिस साल कंपनी ने लॉस बेयर किया है, तो अगर हमारे पास अलग से पहले से डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड पड़ा हुआ होगा तो डिविडेंड को डिक्लेयर अगर करना है ड्यूरिंग सच सर्कमस्टेंसेस व्हेन प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट और व्हेन द कंपनी हैज नॉट गॉट द प्रॉफिट, द कंपनी इज बेयरिंग लॉस, तो हम इन रिजर्व्स का, इन फंड्स का यूटिलाइज कर सकते हैं। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व और डिबेंचर रिडम्पशन फंड। डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म डेट for the company which is to be repaid on the expiry of its period, on its maturity date। जब भी maturity period आएगा 5-10 साल के बाद, 25 साल के बाद, तब हमें हमारे डिबेंचर होल्डर्स को पैसा रिटर्न करना होगा। फॉर द पर्पस ऑफ रिडीमिंग डिबेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट अ स्पेसिफिक अमाउंट इज एप्रोप्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट एवरी ईयर एंड ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड या रिजर्व। हर साल हमारे प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा हम ये फंड में, ये रिजर्व में ट्रांसफर करते रहते हैं एंड द बैलेंस ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन फंड इज ट्रांसफर्ड अगेन टू जनरल रिजर्व आफ्टर रिडीमिंग डिबेंचर्स। अगर हमारे डिबेंचर होल्डर्स को हमने रिडीम कर दिया है उसके बाद भी अगर अपन के पास पैसा बचता है, दैट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। इज दिस क्लियर? Moving further on third, investment fluctuation fund. When market value of investment is already reduced or there is possibility of reduction in the market price, some amount is transferred to investment fluctuation fund out of profit. Yes, हमारे पास हमने जहां पे भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है वहां का वैल्यू, मार्केट प्राइस जो होता है, मार्केट प्राइस अगर रिड्यूस हो रहा है तो हम क्या करेंगे? हमारे फंड क्रिएट करेंगे, हम हमारा रिजर्व क्रिएट करेंगे, किसमें से? आउट ऑफ द प्रॉफिट।
After the sale of investment, a loss amount on this investment deducted from this reserve and the balance amount of investment fluctuation fund is again transferred to general reserve. तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट आपने जितना भी किया है पर उसका मार्केट वैल्यू बहुत कम आ रहा है, तो जो डिफरेंस है जितना आपने इन्वेस्ट किया था और जब आप उसको सेल कर रहे हैं, उसका जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज टू बी यूटिलाइज्ड आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. वो फंड हमने बनाया ही उस पर्पस के लिए है कि अगर हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है तो हम उसका यूटिलाइजेशन करेंगे. तो अगर हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस हो गई है तो हमें उस फंड को यूटिलाइज करना है. आफ्टर यूटिलाइजिंग, इफ देयर इज द बैलेंस इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, देन दैट बैलेंस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व. ऑल दीज आर द practical reserves which we are going to study in your higher standard, that is in your 12th standard. हमें practical questions में ये देखने को मिलेगा कि हम इन reserves को कैसे utilize करते हैं. Next comes is workers, second last it is, I'm sorry, workers accident compensation reserve or workers accident compensation fund. This reserve is created to compensate, भरपाई करने के लिए workers और employees when they meet with an accident during the working hours. अगर वो ऑफिस में है, अगर वो कंपनी में है और उनका कुछ लग जाता है या उनको कुछ एक्सीडेंट के साथ वो मेट हो जाते हैं, मशीन्स में वो लोग काम कर रहे होते हैं, वहां पे अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उन सारी चीजों की भरपाई करने के लिए हमने अलग से एक वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड बनाया है. हम उनमें से पैसा यूटिलाइज करेंगे. नेक्स्ट कम्स इज सिंकिंग फंड. The reserve which is created out of profit for the purpose of the payment of long-term debt or regular payment of interest or purchase of fixed assets is called sinking fund. हम ये फंड को कहां से बनाते हैं? Again, it is very obvious but obvious that always the reserves are to be created out of profits only. जिस साल हमें प्रॉफिट होता है उस साल हम सेट असाइड करते हैं, हम थोड़ा बहुत पैसा रिजर्व्स एंड प्रोविजंस को मेंटेन करने के लिए साइड में रखते हैं. ये सिंकिंग फंड किसमें से बनता है? प्रॉफिट में से बनता है. बट व्हाट इज इट्स पर्पस? फॉर लॉन्ग टर्म डेट और फॉर द रेगुलर पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट अपन को पे करना होगा, या हमें अगर फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करना है तो हम इन फंड्स का यूटिलाइजेशन करेंगे. एग्जांपल्स यहां पे दिए हुए हैं. दीज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. डेप्रिसिएशन फंड फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. हम डेप्रिसिएशन फंड क्यों मेंटेन कर रहे हैं? फॉर परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फॉर रिडीमिंग द डिबेंचर्स. Where are these shown on, you know, like that कि where are these shown in balance sheet? हमें बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व्स को कहां शो करना है? इन बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑन लायबिलिटीज साइड. हम जब हमारे फाइनल अकाउंट्स को देखेंगे तब हमें पता चलेगा व्हाट इज बैलेंस शीट एंड वेयर इट इज टू बी शोन. इट इज शोन ऑन द side of liabilities, which is on the left hand side under the heading known as reserves and surplus. वहां पे हमें इनको दिखाना है. Next comes, that is the third one, secret reserve. The reserve created out of the profit and loss account for the purpose of strengthening financial position of the business is known as secret reserve. This is the reserve of which the existence and the amount is not shown in the balance sheet and profit and loss appropriation account. तभी उसका नाम secret है, वो हमारे books में दिखाई देता नहीं है. Secret reserve is also known as internal reserve. Secret reserves can be created as follows. By making more provisions for depreciation. हमें depreciation में इतना पैसा डालने की जरूरत नहीं है पर फिर भी हमने वहां पर ज्यादा पैसा लगा दिया है. इसी में क्या जुड़ा हुआ है? हमारा सीक्रेट रिजर्व जुड़ा हुआ है. अंडर वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है ज्यादा का पर हमने उसको अंडर वैल्यू दिखाया है. बाय दिस व्हाट वी कैन से दैट हमारे पास सीक्रेट रिजर्व है. By making more provisions for bad debts and contingencies than required. जितनी की हमें जरूरत है उससे ज्यादा हमने bad debt का provision बना दिया है.
बाय रिकॉर्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं उनको ज्यादा दिखा दो तो भी हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। बाय शोइंग कंटीजेंट लायबिलिटी एज एक्चुअल लायबिलिटी है हमारी वो कंटीजेंट, मे और मे नॉट हैपन, उनको हमने एक्चुअल दिखा ही दिया है। बाय शोइंग मोर एक्सपेंसेस देन द एक्चुअल, हमने जितने भी खर्चे किए हैं उससे ज्यादा हमने शो किए हैं। जनरली सीक्रेट रिजर्व कैन नॉट बी क्रिएटेड एक्सेप्ट सर्टेन एक्सेप्शंस, जहां पर परमिशन हो, जहां पे एक्सेप्शंस हो, वहीं पे ये सीक्रेट रिजर्व क्रिएट किया जाता है, अदरवाइज इट इज नॉट क्रिएटेड। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड ब्रॉड हेड of types of reserves, that is capital reserve. The reserve which is created out of the capital profit and cannot be used for distribution of dividend is known as capital reserve. Yes, हमें जो कैपिटल प्रॉफिट्स में से जो हम क्रिएट कर रहे हैं, आगे हमने देखा था रेवेन्यू, तो रेवेन्यू प्रॉफिट में से जो क्रिएट किया जाने वाला रिजर्व है दैट वाज रेवेन्यू, एंड कैपिटल प्रॉफिट्स में से क्रिएट किया जाने वाला जो रिजर्व है दैट इज योर कैपिटल रिजर्व, बट दिस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। फॉलोइंग आर द सोर्सेस, कहां से हम कर सकते हैं? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, हमें जो प्रॉफिट मिला है असेट्स को बेच के या इन्वेस्टमेंट्स को बेच के, हम असेट्स भी रेगुलर बेसिस पे नहीं बेचते हैं, इवन नॉट इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज इनमें से जनरेट किया हुआ जो भी हमारा प्रॉफिट है दैट विल बी योर कैपिटल प्रॉफिट। Profit on revaluation of fixed assets, premium received by the company on issue of shares or debentures, इन सारी sources में से हम हमारा capital reserve create करते हैं। Balance of share for forfeiture account after reissue of shares forfeited by the company. These are again the both topics, shares, debentures and forfeiture। जो शेयर्स हैं ये सब कुछ आप अपने हायर स्टैंडर्ड्स में चैप्टर ही पढ़ेंगे कि वो क्या है और हमें कैसे उनमें से रिजर्व क्रिएट करना है। Profit prior to incorporation of the company, incorporation means establishment, starting of the company, capital redemption reserve for redeeming preference shares, profit on redemption of debentures at discount. All out of all these we can create our कैपिटल रिजर्व। कहां पे हमें यूज करना है? अगेन इट विल बी यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर कैपिटल एक्सपेंसेस, to write off loss on sale of fixed assets, to write off intangible assets like goodwill and fictitious assets like preliminary expense, discount on issue of debentures, etc. For distribution of bonus shares if there is provision in article of association of the company. Is this clear? I hope you all have understood. Please once again go through with your textbook. Moving further on reserve fund, generally the amount of general reserve remains in the business as working capital, but if the amount of this reserve is invested outside the business is known as reserve fund. हमेशा जनरल रिजर्व का पैसा वर्किंग कैपिटल ही माना जाता है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम उसका पैसा यूज कर सकते हैं, पर वही पैसा अगर आपने कहीं आउटसाइड द बिजनेस इन्वेस्ट कर दिया है, रिजर्व का पैसा, जनरल रिजर्व का पैसा, तो उसे अपन रिजर्व फंड कहते हैं। सच इन्वेस्टमेंट्स आर मेड इन सिक्योरिटी व्हिच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। हम वहां पर पैसा लगाते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन जब भी अपन का अनसर्टेन है फ्यूचर, जब भी अपन को जरूरत पड़ जाए तो हम उसको एनकैश करवा सकें। द कंपनी मेक्स इन्वेस्टमेंट ऑफ रिजर्व आउटसाइड द बिजनेस एंड सिक्योरिटी ओनली अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। When it is not possible to employ funds in the business profitably, जब हम पैसा लगा रहे हैं पर हमें पता है कि हमें यहाँ पैसा, हमारे बिजनेस में पैसा लगाने से ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं मिलने वाले हैं, तभी कंपनी आउट जाती है ऑफ दी बिजनेस। अपने बिजनेस से बाहर वो तभी जाएगी जब उसको अपने बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट नहीं नजर आ रहा होगा। When there is need of a specific amount on some specific future dates, जब आपको फ्यूचर डेट्स में कोई पर्पस को सॉल्व करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तब हम पर्पसली अगर आउटसाइड द बिजनेस पैसा लगा रहे हैं तो ही ये अलाउड होता है कि हम जनरल रिजर्व का पैसा आउटसाइड द बिजनेस यूटिलाइज करें। नाउ देयर आर two more differences, general reserve and provisions, that is on your page number 72, and one more is there, general reserve and capital reserve. My dear students, please go through with all these differences very nicely, very thoroughly, because these can be asked as the difference form, as well as objectives can be
chosen from these differences. So please complete both these differences after reading from your textbook. These are on your page number 72 and 73. So please complete this much. Thank you students and have a nice day.